فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے, وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ, نو ڈائٹ, نو ایکسرسائز کے ساتھ. آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ, گولڈن ہیٹس کالونی, پلر نمبر 213, راجندر نگر, حیدرآباد. 8142877400. تلنگانہ حکومت نے ٹیچرز اہلیتی امتحان ٹیٹ 12 جون کو منعقد کرنے کا اعلان کیا. محکمہ تعلیم کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ٹیٹ امتحان میں شرکت کے خواہشمند امیدواروں کو 26 مارچ سے آن لائن طریقے سے درخواست داخل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. 12 اپریل تک درخواستیں قبول کی جائیں گی اور 12 جون کو ٹیٹ امتحان منعقد ہوگا. ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کو لائف ٹائم کر دیا گیا ہے. ایک مرتبہ کسی بھی امیدوار کے ایک مرتبہ ٹیٹ میں کامیابی حاصل کرنے پر یہ سرٹیفکیٹ ملازمت کے حصول تک قابل قبول رہے گا. 11 فروری 2011 میں جاری کردہ ٹیٹ کے رہنمائانہ خطوط کے بعد ٹیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والوں پر اس کا اطلاق ہوگا. ابھی تک ٹیٹ سرٹیفکیٹ صرف 7 سال تک کے لیے قابل استعمال تھا. نامپلی کی ایک عدالت نے نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا. نامپلی کے عوامی منتخبہ نمائندوں کے کیسوں کی سماعت کرنے والی عدالت نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اور وزیر کے ٹی آر کو گالیاں دینے اور ٹی آر ایس پارٹی کے فلیکسی اور ہورڈنگز کو نکال پھینکنے کے معاملے میں غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا. بتایا گیا ہے کہ نومبر 2020 میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے دوران حیدرآباد کی کے بی آر پارک کے پاس ایم پی اروند نے ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے لگائے گئے فلیکسی بینرز اور ہورڈنگ کو نکال پھینک دیا تھا, جس پر ٹی آر ایس کی قائد تاتا مدھوسودن نے ایم پی اروند کے خلاف بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی. اس کیس میں پولیس نے اروند کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی اور عدالت نے تمام گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر دیے, لیکن اروند اس کیس میں ایک مرتبہ بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوئے. گزشتہ کی سماعت میں اروند کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں, اس لیے حاضر نہیں ہو سکے, جس پر عدالت نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے اروند کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرتے ہوئے گرفتار کرنے کی پولیس کو ہدایت دی اور اس کیس کی سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی. ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے ایم آئی ایم ایم ایل اے ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ کے اشتراک سے جاب میلہ منعقد کیا گیا. یہ جاب میلہ پروگرام امپیریل فنکشن ہال چادر گھاٹ میں منعقد کیا گیا تھا, جس میں 60 سے بھی زیادہ کمپنیوں نے حصہ لیا اور 4000 سے بھی زیادہ جابز تھے. اس میں آئی ٹی, آئی ٹی ایز, نان آئی ٹی, نرسنگ, ای کامرس, ریٹیل, انسکلڈ, ہوٹل مینجمنٹ, بینکنگ, فارما, مینوفیکچرنگ, بزنس, ریئل اسٹیٹ, بی پی او, ڈاٹا انٹری, ڈرائیونگ, اسٹیورڈز, شیفز, ہاسپٹیلٹی اینڈ مینی ادرس ڈومینز کے جابز تھے. ہیلپ لائن نمبر ہے 7097655912 اور 9030047303. کی نمائندگی پر کل ملک پیٹ کے اندر امپیریل گارڈن کے اندر جاب میلہ منعقد کیا گیا ہے. میری خاص طور پر نوجوان بچیوں سے, چاہے وہ 10ویں جماعت ہو یا اس سے زیادہ گریجویٹ ہو یا پوسٹ گریجویٹ ہو یا آئی ٹی میں ہو, کسی بھی زمرے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, ان سے گزارش ہے کہ ہم نے آن لائن لنک بھی ہم نے ٹی وی کے ذریعے, اس کے ذریعے دونوں تک آن لائن بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آن لائن رجسٹریشن کرائیے اور اپنے آپ واک ان کر کے بھی یہاں پر آ کر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ آن لائن رجسٹریشن کرا لیجیے تاکہ یہاں پر آپ کو انٹرویو فیس کرنے کے لیے سہولت ہو. زیادہ سے زیادہ کمپنیاں یہاں پر لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. میری تمام بچوں سے اور بچیوں سے, نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آ کر اس میلے میں حصہ لیں اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے آپ کی جاب کی شروعات اچھے طریقے سے ہو جائے انشاءاللہ. ایک منشیات فروش اور 4 صارفین کو نارکوٹکس ونگ حیدرآباد نے ڈی سی پی جی چکرورتی کی نگرانی میں گرفتار کر لیا. ان کے قبضے سے 300 گرام ہیش آئل ضبط کیا گیا, 5 موبائل اور 1 موٹر سائیکل بھی ضبط کر لی گئی. پیڈلر کی شناخت پشوتوش عمر 26 سال ساکن افضل گنج کے طور پر کی گئی ہے. 4 صارفین کو بھی منشیات ونگ ٹیم نے پکڑا. ڈی سی پی نارکوٹکس ونگ حیدرآباد جی چکرورتی کی نگرانی میں یہ کام انجام دیا گیا. حیدرآباد نارکوٹک ونگ اور افضل گنج پولیس
जॉइंट ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार करे। इन लोगों के पास 300 ml का हैश ऑयल, 5 सेलफोन और एक 2 व्हीलर का बरामद हुआ। इसमें मेन पेडलर है आशुतोष, जो 26 इयर्स का है। ये गौलीगुड़ा का रहने वाला है। ये अभी रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन हुआ, प्राइवेट जॉब कर रहा है और दोस्तों को ये म्यूज़िक फील्ड में साउंड इंजीनियर का ट्रेनिंग भी देता है। और इसका 5 कंज्यूमर्स हैं। कृष्णा अनएम्प्लॉयड है, सैयद असद हैदर कुरैशी ये बिज़नेस करता है रेती बोली में, सुरेश ये प्राइवेट जॉब एजुकेशनल कंसल्टेंट पिरजादीगुड़ा में करता है, और अब्दुल मुकीत ये कम्युनिकेशन ट्रेनर प्रॉपर्टी गुरु प्राइवेट लिमिटेड टोली चौकी में काम करता है। आशुतोष ये 2-3 साल से ये फील्ड में है, हैश ऑयल का सप्लाई लेना और इनके दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूशन करना ये 3 साल से चल रहा है इसका एक बॉटल इसमें 5 ml रहता। 5 ml का वैल्यू है 3000 से 5000 तक बेच रहे हैं। ये वाइजैग से आता है। वाइजैग में इसका वैल्यू 600 रुपीज़ है, 600 रुपीज़ से 1000 तक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने DEM बेगम बाजार और उनकी टीम DE मेहदीपट्टनम और उनकी टीम के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की। दर्ज झैल उमूर ज़ेर बहस आए, जिसमें कारवान हल्के के तमाम 6 डिवीजन्स में तमाम ट्रांसफार्मर्स की देखभाल, जहाँ ज़रूरत हो 3 फेज की वायरिंग को खींचना, रमजान बाजार में हकीमपेट टोली चौकी रोड, बड़ा बाजार से फतेह दरवाजा गोलकुंडा रोड, टप्पा चबूतरा कारवान रोड में मोबाइल ट्रांसफार्मर्स की तैनाती, तमाम ओहदेदारों को रमजान के आगाज से 2 दिन कबल 2 अप्रैल तक देखभाल के काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। MLA के साथ AIMIM कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन और दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। मीटिंग की गई जिसके अंदर डी बेगम बाजार के तमाम EDs के साथ में तफसीली बताया गया, और डी मेहदीपट्टनम के साथ उनके तमाम EDs सब इंजीनियर्स के साथ में मीटिंग की गई। फिलहाल रमज़ान और आने वाले दुकाले को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत थी, साबिक़ा में भी मीटिंग की गई थी रमज़ान की। उस मीटिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आला अहदेदार, CMD साहब, डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल थे, और उस वक्त ने बताया था कि जितने भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है या मोबाइल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है देने का तयक़ुन दिए थे। मगर आज यहाँ पर हल्के कारवान में भी मैं समझता हूँ सबसे बड़े बाज़ार यहाँ पर रमज़ान के बनते हैं, जो कारवान से टप्पा चबूतरा चिल्ला रोड पे, डोली चौकी, कीमपेट रोड पर, गोलकुंडा, फतेह दरवाज़ा, बालाइसार की रोड पर इसी तरीके से बड़े रमज़ान के बाज़ार बनते हैं, और वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के मेंटेनेंस की ज़रूरत। सेहत और कॉस्मेटिक्स में कुदरती मादे में हाइब्रिड मास्टर प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो फ्रांस के दरमियान बैनुल अक़वामी ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जो कि फ्रांस की 3 यूनिवर्सिटियों और हिंदुस्तान की 3 यूनिवर्सिटियों के इश्तराक से है। दीगर शिराकतदार मुंबई यूनिवर्सिटी और बेंगलोर की ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी TDU हिंदुस्तान के लिए, और पेरिस की यूनिवर्सिटी और फ्रांस की ISIPCA वर्साइल्स हैं। फ्रेमवर्क मुआहदे का मकसद महारत के मुश्तरका शोबों में बाहमी तहकीक और मुतालियाती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। तदरीस की मुक़र्ररा मुद्दत के लिए लेक्चरर्स और मुहक़्क़िक़ीन के तबादले के दौरों को फ़रोग़ देना, तलबा की नक़ल व हरकत और मुश्तरका मुताले के प्रोग्रामों को फ़रोग़ देना, मुश्तरका तहक़ीक़ी प्रोग्रामों को अंजाम देना, बाहमी ताउन पर मबनी सम्पोजिया, कॉन्फ्रेंसों और साइंसी इजलासों का एहतमाम करना। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के लिए यूनिवर्सिटी फॉरेन रिलेशंस ऑफिस और डायरेक्टर सेंट्रल फैसिलिटीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुतल्लिक़ा फैकल्टीज के डेन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डेन डेवलपमेंट एंड UGC अफेयर्स इस फ्रेमवर्क मुआहदे को मरबूत और लागू करने में नोडल अथॉरिटीज हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए तेलंगाना हाई कोर्ट में तकर्रुर करदा 10 नए जजों ने हैदराबाद के हाई कोर्ट के अहाते में हलफ लिया।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने नए तैनात होने वाले जजों को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में कासुजो सुरेंद्र, सोरीपल्ली नंदा, मोमनेनी श्रीधर कुमार, जोवादी श्रीदेवी, वेंकटा श्रवण कुमार, जी अनुपमा चक्रवर्ती, MG प्रियादर्शनी, संबा शिवराव नायडू, ए संतोष रेड्डी, डॉक्टर D नागार्जुन शामिल थे। 10 नए जजों की तकर्री के बाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद 29 हो गई। इस वक्त अदालत में 19 जज खिदमात सरे अंजाम दे रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट में मजीद 13 असामियां खाली हैं क्योंकि मंजूर शुदा तादाद 42 है। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर डाला जाए ताकि हर कोई उसे देख सके। अरविंद केजरीवाल रियासती असम्बली में बीजेपी के रुकन के इस मुतालबे का जवाब दे रहे थे कि दिल्ली हुकूमत भी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर टैक्स में छूट दे। दिल्ली असम्बली में तकरीर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लीडर कह रहे हैं कि कई रियासती हुकूमतों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर टैक्स में छूट दी है, लेकिन बीजेपी के लीडरों को मेरा ये मशवरा है कि अगर ये यूट्यूब पर डाली जाती है तो तमाम लोग ये फिल्म मुफ्त में देखेंगे। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि वो कश्मीर फाइल्स यूनिट से बात करके उसे यूट्यूब में अपलोड कर दें। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कश्मीर पंडितों के नाम पर सियासत कर रही, जो कि अच्छा अमल नहीं। कश्मीरी पंडितों को कारोबार के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी लीडर्स फिल्म यूनिट से ज्यादा कश्मीर फाइल्स फिल्म की तशहीर कर रहे। एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।